Yeah, which one? Sir, drench wood. Yes. You know what do you mean by drench wood? Sir means wet wood. Where it is used? Sir, sir, I don't know. Sir, I was just asking. बहुत important role है उसका life में, ecosystem में. Okay, so these are the good conductors. Basically, these are what good conductors. Okay, the silver, gold, copper, steel, and seawater. Then those conductors which do not allow the flow of electricity is known as bad conductors, and that bad conductors are known as insulators also. Means those things which do not allow the flow of electrons or flow of electricity. Always remember flow of electrons. If the flow of electrons is happening, then it is known as the flow of electric current. Flow of electric current. Any doubt till here? Okay. Then coming down. So you're having the definition here. Okay. Basically, what does it means? A conductor is a material or any substance that allows the electricity to flow. This is a definition of conductors. Definition of conductor. Clear? An insulator, that is also known as bad conductor, which do not allow the flow of electricity through it, is known as insulators or bad conductors. And any substance that is called as conductor of electricity, it means allow the movement of charges. There are two types of charges. What are the two types of charges? Can anyone tell me? Positive and negative. Negative and positive. Okay. Now, insulators do not allow the flow of charge through them because electrons are tightly packed with their particles. So basically, electrons are very tightly packed. Therefore, they do not allow the flow of electrons. Therefore, they do not conduct electricity. But if they ask you in the exam, why metals conduct electricity? So I told you one example. Oh, I gave you one hint also. Why metals conduct electricity? Can anyone tell me? Because they have electrons. No, electrons word सही है लेकिन उसके पास क्या है? कौन सा electron है? There is one extra electron which flows. That is known as free electrons. They are having free electrons. That is the difference between good conductors and bad conductors. Good conductors are having free electrons. मतलब एक single electron रहता है outermost shell में जिसके through वो electrons flow होने के से electricity conduct हो सकती है. But whenever it is the case of insulator, they are having very tightly packed electrons. अब जब तक tightly packed electrons है तो there will be a movement of flow of electrons. Is it possible? It will be not possible. Clear? So one more important thing, some materials which allow the flow of electricity is called good conductors. Some are called as poor conductors. So even important point to be noted, air is also a bad conductor of electricity. Air क्या है? Bad conductor of electricity. लेकिन जब thunderstorm and lightning आती है, ये charges carry करती है. Okay, so material are classified on the basis of the poor and conductor basis rather than conductors and insulators. गुड कंडक्टर्स में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ टेल मी any two example of strong electrolyte and one example of weak electrolyte in the chat box. Just put me. I'm not able to understand why you're not turning on the camera. Gargi, Suprabha, and Jeeteshri, Arav, Maria, Aradhya, Pushkar, Anshika, and many of the students have not joined also. Yeah, Vinegar, Akshay Baba, okay. I got only few response from the students. मैं सोची कोई है ही नहीं कमरे में है हम इसलिए मैं चुपचाप देख रही टॉवल क्या ढूंढ रही टॉवल ये नहीं भेजे हमको कौन सा टॉवल Okay, so good. So now good conductors is consisting of two topics. One is strong electrolytes and one is weak electrolytes. Now
In the case of strong electrolytes, first of all, we learn that metals are something like solid. And metals में solid जब रहता है तो electrons का flow होता है. Okay, electrons के flow की वजह से electricity पता चलती है कि flow होगी कि नहीं होगी. But liquids में कैसे होता है? Liquids में can you tell me how liquids में कैसे judge करते हैं? Judge करेंगे हम लोग. Through the movement of dash. Ions. Ions. Now ions are of two type. One is positive, one is negative. Cation and anion. Which one is cation? Which is an anion? Positive anions, negative cation. Positive Positive cations, cation, negative anions. Now, anions. वाटर में लिक्विड में आयंस के फ्लो होने से वी डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हर कोई लिक्विड जो है फ्लो नहीं करता है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसका कोई रिलेशन नहीं है लिक्विड्स में, वो सिर्फ सॉलिड्स में. बट व्हेन वी कम टू लिक्विड देयर इज अ फ्लो ऑफ आयंस दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. नाउ आई वांट थ्री सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जिसको हम लोग वाटर में डुबाने के बाद, सब्सटेंस को डुबाने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लिक्विड्स में. कैन यू टेल मी? एसिड, Hydrochloric acid. Acid, base, and salt. H2SO4. बेस में बताओ, बेस में Potassium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH. ओके, और एक चीज बताओ. सर सल्फ्यूरिक एसिड बचाना. सॉल्ट या सल्फ्यूरिक एसिड. वेरी गुड. सॉल्ट, NaCl. yeah. Sodium chloride. NaCl. So any solution of acid, base or salt will conduct electricity. Is it clear? क्या होता है? How the solution is prepared? Nothing. You need to take a beaker. You need to add a water. And उस water के ऊपर से आप ऊपर से कुछ भी अदर acid add कर दो या base या salt. They'll start conducting electricity. Any doubt to anyone now here? Till here? Anyone who's having doubt till here? Sure. You can just put me a thumbs up. You can just put a thumbs up there also. आपको दिखता है. अच्छा, ये एक पिक्चर है. एक पिक्चर में आप ये पिक्चर में देखो, एक टैप वाटर है, डिस्टिल वाटर है. सबसे पहले सर्किट याद कर लो. व्हाट इज दिस कॉल्ड? द ग्लास. Beaker. Beaker. बीकर. That is called as beaker. Perfect. That is called as beaker. सर कंटेनर भी बोलते हैं ना. बीकर मोस्टली मी प्रेफर बिकॉज लैब में यूज होने वाली चीजों को हम लोग देखा जाए तो इसको बीकर कहते हैं. ओके, ये जो रॉड्स है इसका नाम क्या है? कोई बता सकता है कि मुझे? Electrodes. वेरी गुड. Electrodes are what? Solid, metal, liquid or gaseous? In which state? Solid. Solid. दो प्रकार के रॉड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक Negative. क्यों हम लोग Anode इसको and एक? cathode. ओके, एनोड Cathode. एंड Cathode. कैथोड. अच्छा, व्हाइट इज सेट एनोड एंड व्हाइट इज सेट कैथोड. एनोड को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? Sir, because it is attached to positive terminal of battery. Very good. Because it is attached to the positive charge and cathode that negative. If any rod, कोई भी रॉड अगर नेगेटिव पार्ट को कनेक्टेड है तो इसको कॉल्ड एज कैथोड. अच्छा, मुझे अच्छे से बताओ, देखना यहाँ पे ना ये प्लस है और ये माइनस है. मेरे पास रॉड नंबर 1 है. जस्ट अ मिनट. This is rod 1 and this is rod 2. Which one of them is anode? Rod number 1. Rod number One. perfect. Now if you see, what is this called? जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ. What is this part called? What is this? Wire. Wire. Wire को हम लोग क्या कंडक्टर बोलते हैं क्या? Can we call it as a conductor? Yes. Which kind of conductor is used always basically? Good conductors. Good Copper wire. conductor. Copper wire. Good. Basically copper wire is cheap. What is this called? बैटरी. Battery. Battery. Good. बैटरी में दो टर्मिनल्स रहते हैं. कौन से? पॉजिटिव और Positive and negative. नेगेटिव. अच्छा, what is this called? ये बल्ब क्या? सर बल्ब. ये याद रखना, बैटरी को हम लोग यहाँ पे स्विच भी रहता है का. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो बल्ब है इसके अंदर एक फिलामेंट है. ये बल्ब ग्लो हो रहा है, ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है? Electricity is not passed. हाँ, electricity if is the not electricity is passed, the bulb will glow. If the electricity is not passed, the bulb will Not glow. not glow. ये क्लियर है कि यहाँ तक? Any doubt till here now? Yes, sir. No, No, sir. Sure? No, sir. No, sir. Now, any solutions? Now, basically, you need to understand. If you see यहाँ पे ना कुछ solutions है. Distilled water. Is it good conductor? Poor conductor? Poor conductor. Poor Okay. conductor. Vinegar?
Good conductor. Poor conductor. Poor Yes, sir. conductor. Honey, Poor conductor. Poor conductor. Poor conductor. अच्छा मेरा एक सवाल है. Now I need to ask one question. Before that, I'll just explain one topic to you. Okay. Some are in the case. Okay, I'll just explain one topic to you. Wait. Then I'll ask you the question. See, these are called as electrodes, a solid electrical conductor through which electric current enters. ये जो electrodes है इसका definition क्या है? ऐसे electrodes through which electric current enters and leave. Electric current enters and leave the dry cell. Okay. मुझे बताओ ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? What cell? Which cell? Which cell? Circuit. No. Electrolytic cell. Electrolytic solution. Electrolytic cell. इस पूरे सर्किट को, ये जो सर्किट है इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग, the arrangement is totally called electrolytic cell, which is consisting of electrodes, two electrodes, wire, switch, battery and bulb. अच्छा, what is this? A beaker consisting of a liquid is called what? Electrolytes के साथ. Water. Electrolytic solution. Sir, I would, Electrolytic Sir, solution. sir, Very I good. would, sir, if there would be not the tap water, and the wires are directly connected, so sir, it would be a normal circuit, no? Yeah, it will be a normal circuit. If there is no liquid in that, there is a normal circuit. Any doubt till here? Do you understand where is electrode, where is electrolytic cell, where is electrolytic solution? Yes, sir. This is solution. Huh? Okay, can you tell me if the solution, just like coming to the topic now, in this case, we are having two things. One is, if a topic is good conductors, we are having strong electrolytes and weak electrolytes. Some are strong and some are weak. So if the normal battery is used, or a battery more than मतलब जो battery है जिस उसमें, if we are using a bigger battery, we'll get a glow, means bulb will glow. So we say it as a strong electrolytes. But if the bulb doesn't glow, what is the next procedure for checking it? Is it a good conductor of electricity or not? We should check the wires are connected properly. Okay. The bulb No should not loose be connection. fused. Sir, when Okay. there is no loose अगर connection. मैंने फिर भी चेक किया, अगर वो नहीं हुआ, तो मुझे दूसरा कोई मेथड है जिसका चेक करने का पता चले? Battery should be charged. No. For the weak electrolytes, मैंने बताया था weak electrolytes. Yes, sir, we can use LED. We LED, can use good. LED And or we can use second? compass. Compass. What a compass means? What? Magnetic compass? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Now, if It you will see, show deflection. yeah, I just want to ask you, if it is a poor conductor of electricity, is it considered under weak electrolyte? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No. No, absolutely not. Vinegar is also, see, there is a difference between good conductor and poor conductor. Good conductor is having topic strong electrolytes and weak electrolytes. Strong, I told you, normally जो हमें दिखता है, weak में हम लोग ने पढ़े भी थे, विनेगर, जिसमें लेमन जूस, याद है खाने की चीजें हमने बात किए थे, विनेगर, लेमन जूस, this comes under that. But ऐसे weak electrolytes को चेक करने के लिए we were having that topic that is known as LED and one was compass method. Compass. जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते उसको हम लोग पुअर कंडक्टर, जैसे डिस्टिल वाटर हो गया, ओके, विनेगर हो गया, हनी हो गया, देन फ्यूल्स हो गया. ओके, सो दिस आर व्हाट पुअर कंडक्टर्स. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन, अगर वो कोई पुअर कंडक्टर है जैसे टैप वाटर, इफ आई टेक डिस्टिल वाटर, then tell me, if that distilled water is a poor conductor of electricity, can we add something to it and make a good conductor of electricity? What we can add? That I want. Can we add some tap water to it to make Acid a or good base? conductor? Water Very acid. good. We can add acid solution. Sir, or tap water? Acid, base and salt. Tap water also. Sir, Tap we water consists of, salt also and basic and acid also. yeah. Now they will ask you कि जो गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कि वो दोनों, उसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
through which bulb can glow. Okay, but in weak Yes. electrolytes bulb glow नहीं होते, LED का use करते, तो why? Electrons present. Sir, No, no, the ions are less ions. in number Ions are less in number. Where? in weak electrolytes. Yeah, ions are more in where? Strong electrolytes. That's the difference. Is it clear now? Yes, sir. Sure. Now there is one question here. Why distilled water is a poor conductor of electricity, but salt water is a good conductor of electricity? Because distilled water has no ions present in it. Very good, perfect. अजरा पूरी पढ़ाई करके आई है बेटा, लग रहा है आज पेपर तो फाड़ ही देगी लग रहा है। बेटा बाकी कहाँ गए, जिंदा है कि नहीं है? Okay, now I just want see, look at the picture. Sir, it does not have minerals also present in Yeah, it. minerals basically they are not having. Is it clear now? Have you seen the picture? I'm just coming to the next question now. Coming to the LED. LED कोई हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये सबसे पहला सवाल. Why we use only LED? Sir, because Sir, its because electric LED consumption can is stand low. ज़्यादा Sir, its cooling electric consumption is low. Electricity Yeah, perfect point, but nearby to it. Just The filament glows quickly. फिलामेंट नहीं, थोड़ा रिलेटेड है उससे ही, लेकिन बट क्लोज एकदम. क्या हो सकता है? LED हाँ. glows even when the electrics there Yeah, is weak electric current. It is अगर weak, less very energy good, to very good. Who said it? Very good. Even if the weak electric current passes through it, or less number of ions, we can say less number of ions also can pass through it. The filament will glow. Why it will glow now? That's the question. Due to the heating effect of electric current. Because जो बल्ब रहता है Filament heat. उसकी इंटेंसिटी भी कम रहती है, उसको पावर भी कम चाहिए, तो कम पावर मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ग्लो होने लगता है. दैट्स द रीजन एलईडी आर मोर प्रेफरेबल देन एनी अदर. दैट्स द रीजन व्हेनेवर यू पास एन इलेक्ट्रिक करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड एंड ग्लो. बट फॉर डिटेक्टिंग सम लिक्विड्स, क्योंकि कुछ लिक्विड्स ऐसे रहते हैं जो गुड कंडक्टर्स है, लेकिन क्या होता है बड़े सॉकेट्स में डिटेक्ट नहीं हो पाते, तो ऐसे सॉकेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, वीक कंडक्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी दैट इज एलईडी. Hereby, when we pass the electric current through it, it is not strong enough to heat the filament. ये point important है कि वो इतने strong नहीं रहते कि filament को heat करे, और जब तक filament heat नहीं होगा वो glow होगा क्या, bulb glow होगा क्या? Tell me. No. No, sir. No. इसलिए हम लोग LED का use करते हैं, because LED what happens if even a small electric current flows through it, what will happen, the filament will glow because the power consumption of that filament is very low. थोड़ा सा भी मिला तो हल्का सा जल सकता है. That's the reason. Any doubt till here? No, sir. मुझे Yes, पूछना था sir. कि उसमें ना जो पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है, तो एलईडी अगर देखा जाए तो बेसिकली ऐसा रहता है, तो एक पार्ट बड़ा रहता है, एक पार्ट छोटा रहता है. Which one is positive and which one is negative? The long part is positive and the Long small one one is is positive and negative. short one is negative. Sure? Clear? एक मिनट. Now basically coming to this electrolysis. Now इस सर्किट को अच्छे से देखो. एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपको. इस सर्किट को अच्छे से देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं. The term is electrolysis. Electro means passing of electricity. Lysis means breaking means decomposition. Breaking means decomposition. Remember the term decomposition. Decomposition is related to electrolysis. Ready? Should I ask you a question now? सबसे पहले देखो कैथोड कहाँ है और एनोड कहाँ है, Negative. नोट डाउन करो. Left Note down. side is Negative and anode positive. Okay. Note down various cations and anions. Anions positive and anions negative. Okay. Now, if you are able to observe, see cathode के पास cations है and anode के पास anions है. Is it visible to you now? Yes, sir. Yes, sir. Now, listen to me carefully. This was a solution. If I take CuSO4 or if I take H2O, I'll take any of the things. Either you take H2O or either you take H2SO4. I'll take CuSO4 basically for you. Okay, I'll take H2O.
Now, if you see, when you will coming the higher classes, you know H is positive and O is Negative. Negative. नेगेटिव. ये जो है इसके अंदर जो बीकर है उस बीकर में whenever see एक वाटर है एंड वाटर कौन से कलर का, ब्लूइश कलर का समझ लो या कोई भी कलर का. तो क्या होगा, इसके वाटर के अंदर में मैंने इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किया एंड सर्किट कनेक्ट किया एंड जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट that H2O will get decomposed into H plus ions and O negative. My question is, where will be the H plus going to which electrode? Cations. Cation. Anode. Cathode. Cathode. Okay, now listen to me carefully. ये H2O compound है कि electrode है? Compound है. Basically water है. Water is a compound. तो ये जो water है liquids का क्या होता है? Ions होते हैं कि नहीं होते हैं? Positive, negative. Yes, sir. Yes, sir. और जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं क्या? Yes. और नेगेटिव को एनायंस. तो पॉजिटिव वाले जो कैटायंस है वो कहाँ, किसके, कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं? पॉजिटिव वाले Cathode. पॉजिटिव कैटायंस विल गो टू व्हिच इलेक्ट्रोड? दैट इज Negative. कैथोड. वेरी Cathode. गुड, वेरी गुड. एंड एनायंस विल गो टू व्हिच पार्ट? Anode. Anode. Positive. This is a process in which the decomposition of water happens, through which a compound is split up into two equal parts by the passage of electric current is known as electrolysis. This is the definition. मतलब इसमें क्या होता है, आयंस अलग अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस वाले इलेक्ट्रोड्स के पास जाके चिपक जाते हैं. कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ? उसके तीन स्टेप्स रहते पता करने के. बताओ कौन से रहते हैं? Bubbles are formed. Bubbles are formed. बबल्स. जस्ट वेट. बबल्स. वेरी गुड. बबल्स. दूसरा And change in color. Change in color. just a minute. और कोई? Change in color and Huh. deposit of metals. Very good. Who said deposit of metals? Very good. Now listen to me carefully. इसका कोई एग्जांपल बताओ. Formation of bubbles. Where it happened? Where you have seen? Name the experiment. Water. H2O. H2O. Bubbles of Perfect. hydrogen are formed. Okay. Changing color. Which experiment? Potatoes. That's fun. Sweet potato experiment. कौन सा कलर हुआ था बेटा? कौन सा कलर हुआ था मुझे वो बताओ. Green. Bluish green. Bluish green. Bluish green. Okay. Bluish green. Perfect. Okay. Deposition of metal. Propagating. Which one? Electrolysis. Sir, electrolysis. Copper plate. Copper plate. Electroplating of copper. We can. Electroplating. Electroplating of copper. Any doubt? Any doubt till here? No, Am I sir. audible? Okay. My question is there. अच्छा आपको पता है एक क्वेश्चन आ सकता है आपको. ये इलेक्ट्रोड दिख रहा क्या? दोनों इलेक्ट्रोड. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके ऊपर मेटल कैप्स रहते हैं. If we see properly in the labs we are having metal caps. Why we should clean it with sandpaper before using the electrodes? Why electrode should be cleaned with sandpaper? उसको साफ क्यों करना चाहिए? Sir, because if उसमें वो there is a rust layer रहता of rust or anything, it should get रश out. रहता है. Layer of rust या layer of oxygen या फिर और Come ऑक्साइड out. formation can be there जिससे chemical reaction में changes आ सकते हैं. Therefore we need to clean it with sandpaper. They cannot ask you but remember it for future preference. और अगर आया भी तो आपके लिए अच्छा है. Any doubt till here now? No, No, sir. sir. Okay, one more question to you now. See, imagine now instead of this, you'll be having a matchbox and matchbox के अंदर क्या रहता है? Compass. 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 Compass के बाहर में क्या रहता है? वो Wires. Wiring. wire रहता है. Now, if the electric current will flow, electric current creates what? Magnetic current. नहीं, Magnetic magnetic field. current Sorry. नहीं. Magnetic Magnetic effect. Field. Magnetic field. Very good. Magnetic effect means magnetic field only. Okay. और जब magnetic field create होगी तो मतलब दो poles create होंगे, एक north और एक South. 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 ये जो magnetic field वाले जो charges है वो किसको affect करेंगे?
किस में डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट होगा? Compass. Compass. Compass, because compass is also having A that magnetic needle north that is and North Pole and South Pole. agar if the deflection is shown, it means what? The It is a conductor is weak, what? weak, It is a electrolyte. It is electrolyte. It is a weak conductor and it is a electrolyte. electrolyte. एक चीज याद रखना, electrolyte is said to be, it can be either good conductor. Electrolyte is weak. said to be good conductor. In good conductor, they are having two types, that is Strong and weak. strong and weak. And wait. Remember what we are studying, LED and compass, they are for only for good conductors. Yes, They are sir. only for good conductors. और जो बिल्कुल नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं Poor पुअर conductors. कंडक्टर या इंसुलेटर. कुछ मुझे बता सकते हैं पुअर कंडक्टर के एग्जांपल? Don't mix that poor conductor with weak conductor. Honey, milk, honey, distilled water, Kerosene oil, vegetable oil, or Fuels. honey, distilled water, distilled water. Any more? Honey, milk also. Milk is also there in the poor conductor. Remember, वो गलत दिया था उसमें. और कोई? Sir, अच्छा, मेरा fuels. सवाल है. Fuels. Sir, Very good. I have a doubt. Yes, बेटा. Sir, if water is added, tap water is added to milk, sir, is it a good conductor then? Yeah. Tap water can do it. Tap water consists of, why it happens? Why, you know, because of the presence of minerals in it. मैंने बताया था ponds, lakes and जो ponds, lakes का जो water रहता है, why it is considered good conductors? Because I told you, minerals They are have present. dissolved salt. salt रहता है Salt, उसमें. dissolved salt. That dissolved salt played an important role. That's why they are consist of good conductors of electricity. Any doubt? Excuse me, sir. या बेटा, माही? Yes, sir. वही तो बोलूं, माही ने सवाल क्यों नहीं पूछे अभी तक? हाँ पूछो बेटा. Sir, milk में salt, sir, milk weak conductor of electricity, electricity conduct नहीं करता है. Milk never conducts. Milk is a poor conductor of electricity. उसमें तो lactic acid और other salts भी होते हैं ना? आयंस के फ्लो में सपोर्ट नहीं करते हो, मैंने लास्ट टाइम बताया था. अच्छा. उतने अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट नहीं रहते, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर पाता है. ये रीजन है. आप उसमें कुछ थोड़ा इम्प्यूरिटीज डाल दो, कुछ एसिड या बेस हल्का सा, वो कंडक्ट करने लगेगा. ठीक Okay, है sir. माही? Yes, sir. Thank you. Should I Sir. move to next topic now? Electroplating. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is there anything left? कुछ ऐसा छूट गया क्या अपने से? मेरे को याद नहीं आ रहा. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लास्ट में बताऊंगा, मैकेनिकल बताऊंगा लास्ट में. Is there anything I left? You feel? No, sir. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट में द फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डेफिनेशन. द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, वी डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल, और इट कैन बी ऑन द सेम मेटल ऑल्सो. इफ वी डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल ऑन द सेम मेटल or another metal by means of passing electricity is called as electroplating. Electroplate. One of the most important thing. इसमें अगर देखा जाए कॉपर सल्फेट, ना वी रिमेंबर दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का अगर उसने एमसीक्यू में पूछ लिया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिखता कौन से कलर में? Green. Blue. Green. नहीं, ब्लू कलर का दिखता है. और FeSO4, फेरस सल्फेट, Reddish. नो. फेरस सल्फेट और वो जो है दोनों याद रख लो, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. जो कॉपर सल्फेट है इट ऑलवेज लुक लाइक कलर लाइक ब्लू, एंड जो फेरस सल्फेट रहता है ग्रीन. ये केमिकल लैब्स में, लैबोरेटरीज में रहता है. संचिता, मेरी आवाज आ रही ना बेटा? ऐसे रोज क्लास में जैसे रो आवाज आती वैसी नहीं है ना? प्रॉपर है ना जरा एकदम? Yes, sir. आज Yes. आपकी आ रही है. कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो मैंने आज, इसलिए. ठीक है. ओके, नाउ इफ वी सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. ओके, नाउ क्या होता है, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट. वेदर इट कैन बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वेदर इट कैन बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है, लेकिन इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. नाउ व्हेन यू दे से द टर्म कॉपर सल्फेट, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना.
जो पहला नाम रहता है ना वो कभी भी पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव जो रहता दूसरा है नाम रहता है वो नेगेटिव रहता है। नेगेटिव। ये याद रहेगा क्या? Yes, sir. और याद रखना Yes, ये sir. आयंस रहते हैं, ये आयंस रहते हैं, ये आयंस रहते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो कैटायंस रहता है, और जो नेगेटिव है वो Anions. एनायंस। और इसके उल्टा होता है फिर इलेक्ट्रोड्स वाला पार्ट। याद रखना कैटायंस जाएगा किसके बाद? देखो सी फॉर कैटायन, सी फॉर कैथोड। ये सीसी का मत भूलना, सीसी का मत भूलना। कैट 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 फाइट दोनों में कैट आता है टर्म। कैटायंस पॉजिटिव, और ये आयंस की बात कर रहा हूँ, और ये रॉड्स की बात कर रहा हूँ। Electrode. होता है, बट एक बार याद हो गया तो फिर टेंशन नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट लिया? No, sir. No, sir. अब सुनो, अच्छे सुना, थोड़ा बस 1-2 मिनट लूंगा। वाटर, हम लोग ने वाटर में कॉपर सल्फेट डिपॉजिट होने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। नाउ इमेजिन इट इज अ पॉजिटिव एंड इट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, ओके? एंड आई एम चेंजिंग माय कलर नाउ, ब्लू। ये ठीक है। नाउ जैसे ही मैंने डिपॉजिट किया तो ये जो कॉपर था ये अलग हो गया, और ये सल्फेट था अलग हो गया। कॉपर कभी भी पॉजिटिव रहता है एंड सल्फेट कभी भी Negative. नेगेटिव। तो ये जो कॉपर वाला है वो किसके पास जाएगा? Negative. कौन नहीं, सा negative? positive. Sir, positive. Cathode. Sir, cathode. So ये negative वाला नहीं बोल है। रहे हैं इसके पास कैथोड के पास। Yes. Yes, sir. Okay. मेरा एक सवाल है, ठीक है? ये जो दोनों रॉड्स है कॉपर प्लेट्स है, ठीक है? अगर यहाँ पे जो कॉपर है ये आयंस कम हो रहे हैं ना, क्योंकि जाके वो चिपक रहे, तो उसको यहाँ पे कॉपर की फिलिंग कौन करेगा सॉल्यूशन में फिर? दूसरा कॉपर प्लेट। यस, वेरी गुड। कॉपर प्लेट्स के जो आयंस है वो कहाँ जाएंगे? अभी वाटर में। एंड फिर जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी ये जाके इधर चिपकेगा, यहाँ पे फिर क्वांटिटी कम होगी, फिर कॉपर प्लेट अपने आयंस वाटर में देगा, और फिर ये जाके ये चिपकेगा। ये किसको क्लियर नहीं है अभी बताओ मुझे? ये प्रोसेस याद रखना। I'll explain to you once again. Two plates are there. One is cathode, that is a negative electrode. One is anode, that is a positive electrode. Okay? कॉपर प्लेट में हम लोग यहाँ डुबाने के बाद ये CuSO4 है, ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। Cu will go to cathode as soon as we pass the electricity. लेकिन जैसे ही कॉपर आयंस चले गए, समझ लो ये क्वांटिटी में 100 थे तो कम होने के बाद, क्योंकि यहाँ जाके चिपक गए वो, बबल्स का फॉर्मेशन दिखने लगा, तो मुझे समझ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो 100 में से 96 बचे। तो ये जो 4 है वो कहाँ से आएंगे? वो कहाँ से आएंगे इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में? तो ये कॉपर प्लेट के थ्रू आएंगे। और सर फिर कॉपर प्लेट में अगर कम हो रहा है तो उसका क्या? तो कुछ नहीं होता। कॉपर प्लेट जैसी अभी दिख रही है, तो कुछ समय बाद क्या होगा? ये ऐसी सिंपल एकदम सिंगल ऐसी हो जाती है, ड्राई सेल हो जाती है। इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस नाउ। पहले ऐसी थी, पूरा सोल्यूशन होने के बाद ये ऐसे दिखने लगती है, क्योंकि उसके आयंस यूटिलाइज करके, वाटर सोल्यूशन यूटिलाइज करके यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ये क्लियर है क्या? पहले बताओ। Yes, sir. मेरा पहला सवाल, जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको कौन से रॉड पे कनेक्ट करते हैं? Negative. नेगेटिव। और जिसका लेना है उसको पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। यहाँ पे किसी को डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन नाउ? No, sir. श्योर Excuse me, sir. नाउ? यस बेटा। सर कॉपर प्लेट आयंस क्यों देता है सर? लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सर They are having- हाँ, सर बट हाउ विल दैट कॉपर प्लेट विल गेट टू नो कि सोल्यूशन में कॉपर कम है तो सप्लाई करना पड़ेगा? आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है? यस सर। आपने कभी वायर को पूछे कि तेरे अंदर से क्यों फ्लो रही है इलेक्ट्रिसिटी? बेटा सवाल ऐसी है ना, आप जब उसको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। मैंने बताया था, वो मूव नहीं होते, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं। याद आया? मैं क्लास में बताया था माही। अच्छा हाँ, यस सर। अब याद करो, आप और सौरभ कोई ट्रिप पे गए हो ताड़ोबा में, ठीक है? आपको भूख लगी और सौरभ के पास भी खाना है, आपके पास भी खाना है, आपका खाना खत्म हो गया, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? आपका भाई सपोर्ट करेगा ना, कि शेर आके सपोर्ट करेगा बेटा? सिमिलरली जब यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे भी कॉपर है, तो ये दोनों भाई बहन ही हुए ना, या भाई भाई हुए ना। तो ये जब यहाँ पे इसका अगर क्वांटिटी खत्म हो रहा है तो ये भाई इसको रिप्लेस करता है। दैट इज द रीजन।
ऐसा है। मूसा कैसे रिप्लेस करेगा? क्वांटिटी ऐसे हमें दिखता है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत बड़ा रहता है। लैबोरेटरीज में, लैब्स में हम जब देखते हैं ना आंखों के सामने, तो पता चलता है कि ये कैसा हो रहा है कंडक्शन। और बहुत दिन लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं होता। उसके लिए हाई वोल्टेज बैटरीज वगैरह लगती है। माही क्लियर है माही? हाँ सर, माही कम से कम 10-15 तो Yes, लगता sir. है नहीं, बहुत ज्यादा लगते हैं। डन। में। सर 1 एक स्टैक क्वेश्चन है। लगता है मतलब। हाँ, ये तो बात सही है। एक और क्वेश्चन है। पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग जब यूज करते हैं, इट इज एन यूजफुल प्रोसेस इन द इंडस्ट्रीज बेसिकली टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स। ओके। एंड इसमें होता है कि एक लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट है दूसरे इसमें। क्यों हम लोग क्रोमियम की यूज करते हैं? क्रोमियम कोई बता सकता है हम लोग क्रोमियम को यूज क्यों करते हैं सर वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? Because सोल्डरिंग जो करते हैं ना सर, वो Right. वायर में shine, वो जो shine, मेटल पार्ट not निकलते वो rust. क्या है Luster and shine. सर? लस्ट्रस एंड शाइन। और कोई? Sir, Sir, first chromium Rust formation is Sir, not it due to is chromium. sheep. और उसे It is sheep. Sir, इलेक्ट्रोप्लेटिंग rust is. होती है। नहीं, सब Sir, गलत, it is सब sheep. गलत। Sheep. नहीं, sir, गलत, because सब गलत। chromium, sir, Sir, because rust is chromium पूछना is चाहता not हूँ। rust. एक मिनट, protecting माही क्या rust. बोले बेटा? एक मिनट, जस्ट वेट। इट डज वो नॉट रस्ट नहीं रस्ट, होता। That Sir, डज because नॉट rust नहीं chromium होता. does not rust. करोड, करोड डज Yes, नॉट, करोड मीन्स रस्ट नहीं होता। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट है, वो चीप है। क्या है वो? चीप यानी सस्ता है। सर जो दैट्स व्हाई वी सोल्डरिंग जो यूज करते हैं सर, वो वायर में करते हैं, तो वो मेटल ही पार्ट क्या है? कॉपर्स का यूज करते हैं बेसिकली। ओके। जो ज्वेलर्स रहते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, जैसे आयरन या कॉपर के मेटल्स के ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं पता है? सिल्वर एंड Gold. गोल्ड। हल्का सा सिल्वर एंड हल्का सा गोल्ड लगा के फिर दिखाते। फिर मैं बताता, अपन कुराड़ी मंदिर जाते तो व्हाट हैपेंस, वी सी शाइनी लॉकेट्स एंड लस्ट्रस लॉकेट्स। हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, पहन जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रस्ट लगने लगता है तो वो क्या होता है? Golden plated. Golden plated. और ओरिजिनल प्लेट्स में आता है। टिन कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑनटू आयरन। हम लोग टिन की जो प्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर क्यों करते हैं? ताकि आयरन रस्ट ना हो। Because tin does not react very, means it is less reactive than iron, and it does not फर्स्ट react पॉइंट, with food. टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन क्या है? रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव देन Iron. iron. First is they less reactive. Second, you know what is the important point? प्रोटेक्टिंग Second is they never reacts. Tin never reacts, means food does not come into the contact with iron. Iron के साथ food आएगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन वो आता नहीं है because of the protection of tin. That's the reason we favor it. Is it clear now? Yes, sir. And one more thing, you know, due to the passing of current, तो जब हम लोग करंट पास करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिलामेंट गर्म होता है। एंड फिलामेंट के गर्म होने से व्हाट हैपेंस, द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। दैट प्रोसेस इज नोन एज बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू इट्स इफेक्ट द फिलामेंट इज गेटिंग हीटेड। एंड ये फिलामेंट जब हीट होता है जिसके वजह से बल्ब ग्लो होता है, इसे हम लोग कहते हैं, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट, Electric current. इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एनी डाउट? No, sir. Any doubt to anyone? You can tell me. Should I give you a question now? You can solve it later on. We'll move to the next chapter. But till the time, I can give you a new question. I can give Yes, a sir. question to you. Or should you, or either you want in the Google form? Google form में इसमें दूँ चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Google form. चलो Google form के इसमें दूंगा. Can we move to the next part now? I just Yes, want your sir. attendance now. Just turn on your cameras. I need to take the screenshots. कोई proof तो रहना चाहिए ना, क्लास में थे बेटा आप लोग. How many students are there? 27 only. बाप रे, लगता है सब साइंटिस्ट बन गए, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. आरव, कैसे हो? सर ठीक हो? अभी स्कूल नहीं आ रही, बड़ी याद आ रही है स्कूल की. अब तुम लोग आते नहीं हो, अकेले जाना पड़ता है. ये तो टाइम पास नहीं हो रहा है ना, अभी क्या करो. टर्न ऑन योर कैमरा. बेटा क्यों इतना पाउडर लगाते हो बेटा? इसलिए बोलता हूँ पाउडर मत लगाया करो. टर्न ऑन द कैमरा. नाउ basically we have studied about it, so it is not too dangerous. We can avoid it by taking the precautions.
Should I move forward now? Yes, sir. Benjamin Franklin, in which year he discovered, 1752. 1752. What he did, what he observed? लाइटनिंग जो ग्रीक साइंटिस्ट थे बहुत साल पहले भी 600 BC के आसपास उन लोगों ने क्या हुआ था कि दो चीजों को रब करके देखा था, तो उसमें ना देखे थे कि लाइट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर, स्मॉल थिंग्स. इफ यू सी वुलन क्लोथ्स एंड पॉलिस्टर क्लोथ्स कैन आल्सो अट्रैक्ट हेयर, एंड हम लोगों को भी फील होता है. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट पर्सन who told that there is no difference between lightning and spark. It is because of the charges which are present in the bodies. Now charges में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीच में. सबसे इंपॉर्टेंट बीच में क्या रहता है मुझे बताओ. What is the most important present in the center in any atom? Which thing is present? न्यूक्लियस. जिस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो घूमते रहते हैं, those things which are revolving, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. प्रोटॉन्स Positive. Positive. और न्यूट्रॉन्स Negative. Neutral. No charge, Neutral. neutral. न्यूट्रल. ना इधर का ना इधर का. क्लियर? एनी डाउट? कोई भी चीज को चार्ज करना है तो उसको क्या करना पड़ता है? Rub. रब करना पड़ता है. बिकॉज ऑफ रबिंग व्हाट हैपेंस? कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज ऑफ रबिंग व्हाट हैपेंस? फ्रिक्शन क्रिएट होता है. Friction is produced and then एंड the बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन व्हाट हैपेंस? Electric discharge. Electric charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस produce. आते हैं. मतलब वो चार्जेस क्या होते हैं, पास होने लगते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. ठीक है. व्हेनेवर वी रब टू ऑब्जेक्ट्स ईच अदर वी गेट अ चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. याद है मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे. आई विल नॉट टीच यू इन द डीप नाउ. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कैसे होते हैं मैंने बताया था. माही, यू आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दैट. electric induction, sir, electric हाँ. induction. पास होते एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. If we rub a rubber woolen with of animal fur, the balloon is made up of rubber attracts the electron from the animal fur. This results in rubber having an excess of electrons and fur having shortage of electron. This I explained to you कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है ये भी मैंने बताया था. जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे ट्रांसफर करता है. बिकॉज ऑफ दैट द चार्जेस एक्यूमुलेट, एंड व्हेन द चार्जेस एक्यूमुलेट, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, और जब दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज समथिंग व्हाट मींस अट्रैक्शन. एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन. एंड जब चार्जेस ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो चिपकने लगते हैं. कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी है जिसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है. याद है रिपल्शन किसमें होता है? ऑब्जेक्ट्स रिपल कब होते हैं? Sir, जब सेम चार्जेस रहते हैं. और अट्रैक्ट कब होते हैं? जब अट्रैक्ट कब होते हैं? Unlike charges. Opposite charges. Opposite charges. One more thing, objects having excess of electrons are called negatively charged. ये पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑब्जेक्ट्स को नेगेटिव चार्ज क्यों मिलता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. और ऑब्जेक्ट्स को पॉजिटिव चार्ज क्यों मिलता है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन से. याद रखना, जिसमें शॉर्टेज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहा होगा रब करने के बाद? उस ऑब्जेक्ट को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटिटी उसने बढ़ा दिया. इसको पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोलते बताया था मैंने, बताया था इसमें किसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते. याद है किसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है? Sir, protons. प्रोटॉन्स की. और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कम होती है. दिस विल बी कमिंग इन द हायर क्लासेस. एनी डाउट टिल हियर? No, sir. ओके. जिसको भी हम लोग रब करते हैं ना, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क क्लॉथ, तो ये जो ग्लास रॉड ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिसको एक्चुअली बेसिकली हम किसी और ऑब्जेक्ट पे रब करते हुए बेसिकली याद रखना पॉजिटिव चार्ज रहते हैं. एंड सिल्क क्लॉथ इज बेसिकली नेगेटिव. तो जितने भी रॉड्स प्लास्टिक है वो सब पॉजिटिव में ही आते हैं बेसिकली. तो टुमारो आई विल गिव यू गूगल फॉर्म में ना, उसमें मैं तुमको भेजूंगा एक कि कौन से पॉजिटिव रहते हैं, कौन से नेगेटिव. ओके. नाउ बेसिकली व्हेन यू कम टू दिस क्वेश्चन, सी यहाँ पे चार्जेस दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? Sir, Because they are same. same. They are same. दे आर सेम. और जब सेम वाले रहते हैं तो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल होते हैं. मींस दे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस attract. And why the force of attraction is happening between them? Because of the force, because of that electrostatic force. What is that?
सर ये वैसा ही जैसे electrons कि सर नॉर्थ एंड नॉर्थ सर रिपेल होते हैं और सर या साउथ सेम मैग्नेट जैसा है, मैग्नेट जैसा है। ये याद है कंडक्शन, जब चार्जेस मूव होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यहाँ तक कोई डाउट था क्या? इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप मैंने डिवाइस बताया था, हम लोग कैसे बनाए थे, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोस्कोप के लिए अपन ने क्या लिए थे सबसे पहले? एम्प्टी जार बॉटल। एक जार लिए थे, जार के ऊपर हमने क्या किया था पता है? क्या क्या कौन सा बॉक्स जैसा था, क्या था उस बॉक्स का नाम? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड। उसके जो माउथ है उससे थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड हमने लिए, उस कार्डबोर्ड में एक होल किए, उस कार्डबोर्ड के ऊपर होल करने के बाद क्या पुट किए थे उसमें हमने? metal paper clip. मेटल clip. पेपर मेटल पेपर प्लेट, मेटल पेपर, मेटल, एक मेटल था, पता है? पेपर क्लिप थी एक, एक्चुअली बेसिकली पेपर क्लिप मेरे को याद है। उस पेपर क्लिप पे मैंने क्या लगाया था, क्या था वो? Aluminium strips. एल्यूमिनियम फॉइल। और गुड, और कैसे रब किया था फिर मैंने? उस क्या लिया था बाद में, हाथ में क्या लिया था मैंने रब करने के लिए? Charged ball pen refill. बॉल पेन रिफिल, बॉल पेन रिफिल, बॉल पेन पे रिफिल पे मैंने रब करने पे बाद क्या हुआ, बॉल पेन रिफिल चार्ज हो गई। उस रिफिल ने चार्ज किसको पास किया? इस पेपर क्लिप को। उस पेपर क्लिप ने किसको पास किया? Aluminium foil. Aluminium foil. नाउ इफ द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन द लीव्स डाइवर्ज आउट, अगर लीव्स के मूवमेंट हो रहे हैं मतलब ये क्या है, बॉल पेन रिफिल चार्ज है। अगर लीव्स के मूवमेंट नहीं हो रहे हैं मतलब बॉल, मतलब वो जो रिफिल है वो चार्ज नहीं है। ये इसलिए एक्सपेरिमेंट किया गया था ताकि देखने के लिए कि कैसे अगर चार्ज अगर पास हो रहा है उस पेपर क्लिप के थ्रू एल्यूमिनियम फॉइल्स तक, देन इट इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट, दैट पार्टिकल इज गेटिंग चार्ज। अगर नहीं हो रहा है इट मींस दैट इट इज नॉट गेटिंग चार्ज, दैट इज व्हाई वी कंडक्टेड दैट एक्सपेरिमेंट। डन सर। या माही? सर बॉल पेन रिफिल पे चार्जेस स्टेशनरी नहीं होती है? रब करोगे तो वो कैप्चर करता है चार्जेस और बाद में पास करता है ना। सर तो फिर चार्जेस लाइक रेस्ट पे नहीं होते, फिर तो वो मेटल्स की तरह होते हैं ना सर, लाइक वो फ्लो हो सकती है। इसमें स्टैटिक होता है। स्टैटिक मोशन में क्या होता है कि चार्जेस सरफेस पे ही रहते हैं, माही मैंने बताया था एक बार। सर अगर सरफेस पे रहते तो फिर सरफेस से पास होते हैं? हाँ, सरफेस से थोड़ी देर के लिए पास होते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का सा अमाउंट में पास करते हैं, ज्यादा अमाउंट में पास नहीं करते, थोड़े अमाउंट में पास करते हैं और वापस आ जाते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट में रहेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो मेन जो सर्किट में रहता है वैसा कंडक्ट करने लगेंगे, ऐसा हो जाता है वो। सी इफ यू रीड दिस लाइन, whenever a charge object, yeah, yes, any doubt? Sir, can you repeat the last line, the previous one, the very previous one, where you were saying that अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो प्रोटॉन्स बढ़ जाते, वो वाली लाइन आप रिपीट कर सकते हैं? बेटा मृणाली तिड़की, आप जिंदा हो? इतना लेट आए क्लास में? No, sir, I was there. तबीयत खराब है क्या? No, sir, I'm इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था, देखो सी यू हैविंग डाउट इन दिस टॉपिक कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला गया वैसे, इसलिए नहीं सर, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे ना, रबिंग ऑफ इलेक्ट्रोड एंड वो सिल्क क्लॉथ, और तब आपने बोला था कि अगर कुछ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी इसमें चला जाता है तो फिर प्रोटॉन खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। वो वाला आपने लाइन कुछ बोला था, वो आप रिपीट कर this one an object is called because of the shortage of electron positively charged, इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम है, अगर इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो प्रोटॉन्स भी 11 रहते हैं। लेकिन जब हम लोग रब करते हैं तो समझ लो इस एक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी और को चलेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी और को, तो समझो इसके पास 10 है। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव ज्यादा है कि पॉजिटिव? तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ओके बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई दे गेन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर नाउ? यस सर, थैंक यू। सर आप अपने पेन का कलर चेंज कर दीजिएगा, उससे अच्छे से दिख नहीं रहा है। कौन सा कलर लूं? ब्लू? कोई भी लीजिए, पर वो बहुत ज्यादा लाइट हो जा रहा है। ठीक है। नाउ लाइटनिंग के समय सी बेसिकली अगर हमें रोकना है तो एक प्रोसेस, अच्छा अर्थिंग में बाद में बता दूंगा। लाइटनिंग बिकॉज ऑफ लाइटनिंग मतलब थंडर, एक थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है, बिकॉज एटमोस्फेयर में तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर होता है, विंड होता है, तो जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर जाते हैं और क्लाउड्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं। और जब क्लाउड्स में एक्यूमुलेट होते हैं तो वहां पे दो चीज होती है, एक होते हैं
हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स, एक होते हैं क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट वाटर ड्रॉपलेट्स। नाउ मुझे एक बात पूछना था कि जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ सेटल डाउन होते हैं? सर हेवी वाटर ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली नीचे चार्ज नीचे के नीचे नीचे सेटल बॉटम पे आ जाते हैं, नीचे बॉटम सेटल पे आते हैं और लाइट वाले ऊपर। ऊपर चले ऊपर। जाते और जब ये आपस में एक दूसरे क्लाउड से या एटमोसफियर में कोई भी एक चीज है उससे टकराते हैं या माउंटेन्स या कोई बिल्डिंग्स को टकराते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, एंड जब चार्जेस अट्रैक्ट होते एक दूसरे से या उसके वजह से होता है वो, दैट क्रिएट साउंड्स आल्सो एंड दैट क्रिएट्स electric discharge also, and that electric discharge looks like lightning. That electric discharge looks like lightning. Any doubt now? ये छोटा सा टॉपिक है। मुझे एक बात बताओ, लाइटनिंग की सेफ्टी के लिए आपको पता है पॉइंट्स के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शुड आई एक्सप्लेन यू? और पता है ना बिल्डिंग अम्ब्रेला क्यों यूज नहीं करना है? वी डिस्कस इन द क्लास। छोटे ट्री, हम लोग छोटे पेड़ के नीचे खड़े हो सकते हैं लेकिन बड़े पेड़ के नीचे खड़े नहीं हो सकते, ये पता है ना आपको लाइटनिंग में? यस सर। यू नो बेसिकली लाइटनिंग के समय हमें कार में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऑल्सो वी शुड नॉट स्टैंड इन द नियर बाय टू द इलेक्ट्रिक पोल्स और मेटल ऑब्जेक्ट, यस सर। प्रोसेस टू पास इलेक्ट्रिसिटी। मुझे बताओ लाइटनिंग होते समय जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग से उनके ऊपर कुछ लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेटल रॉड। Lightning conductor also it is Lightning conductor. a device which is used to protect buildings from the effects of lightning, that is called as lightning conductor. Lightning conductor. इस lightning conductor का काम क्या है, मुझे कोई बताएगा क्या? एक मेटल स्ट्रिप रहती है एक्चुअली, बेसिकली एक मेटल स्ट्रिप रहती है टॉप सर पे। वो लाइटनिंग अगर आई तो वो उसको लग के नीचे गिर जाएंगी खुले Through ग्राउंड। the, yeah, it will go with the help of that metal strip, it will go along the outer wall of the building to the ground, and ground में वहां पे भी नीचे एक मेटल प्लेट रहती है, उस मेटल प्लेट के थ्रू वो कहाँ चल जाती है? इट गेट्स बरीड इनटू द सॉइल, अर्थ और इनटू द सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है, पूरी बिल्डिंग को प्रॉब्लम नहीं होती है या बिल्डिंग डैमेज नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड बिल्डिंग्स डैमेज होने के चांस ज्यादा रहते हैं, याद रखना। ये क्लियर है क्या? इसी को हम लोग क्या अर्थिंग भी बोलते हैं क्या? अर्थिंग प्रोसेस। लेकिन ये तो लाइटनिंग के लिए, लेकिन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके डिस्चार्ज से बचने के लिए, एक्सेस ऑफ करंट से वो सब बचने के लिए, करंट लगने से हम लोग भी हमारे घर पे क्या यूज करते हैं? अर्थिंग यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? बिल्डिंग की एक ही साइड पे मेटालिक मतलब लाइटनिंग कंडक्टर होता है तो दूसरी साइड पे क्या होता है? नीचे में भी लगाते हैं, नीचे में कॉपर प्लेट लगाते हैं। नहीं सर, अगर ये साइड पे है तो दूसरी साइड पे अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो? बेटा कहीं भी स्ट्राइक हो वो एक ही जगह कैप्चर होगी, वो अट्रैक्ट करती है। ये पॉजिटिव यहाँ पे है ना, नेगेटिव यहाँ पे है, वो कहीं से भी आए दे विल गेट अट्रैक्टेड, दे विल गो टू इट्स। मुझे बताओ आप कैडबरी कर जाते हो कि कैडबरी आपके पास आती है बेटा? अजरा यस सर। बेटा आप कैडबरी कर जाते हो दुकान में लेने के लिए कि दुकान वाला कैडबरी लेके आपके पास आता है? सर हम जाते हैं। हाँ, तो उसी तरह लाइटनिंग भी उसके पास आती है अट्रैक्ट होने के लिए, समझा? अर्थक्वेक भी एक नेचुरल फिनोमिना है। नाउ अर्थक्वेक में 3 प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स रहते हैं, because and remember the one of the most important thing, it lasts only for a short span of time, few seconds, and it can cause the disturbance into the crust. Why create the disturbance in the crust only? Why not in mantle and core? The plates are moving. Yes, who said it? The plates are moving into the and they are very lighter. Now if you see the picture, we are having one core, inner core and outer core. मुझे बताओ मोल्टन वाला पार्ट कहाँ होता है कोर में, एंड सॉलिड वाला कहाँ होता है? मोल्टन कोर कहाँ होता है? molten Inner. magma inner core में। इनर नहीं, कोर में। मोल्टन core. आउटर में, और सॉलिड Inner core. इनर कोर, और सबसे हॉटेस्ट inner core। इनर कोर। उसके बीच वाला पार्ट मेंटल। मेंटल में होता है एक्चुअली बेसिकली व्हाट, जो मेन वोल्केनो का जो लावा का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली मेन मेंटल में होता है, और यहाँ पे भी मतलब मोल्टन सॉलिड रॉक्स ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो हीट है, जो कन्वेक्शन करंट होता है कि गर्म हवा जो बाहर निकलने लगती है, वो इस मोल्टन की वजह से होती है, मेंटल की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द इनर कोर के प्रेशर की वजह से, प्रेशर फ्रॉम द इनर कोर, दैट इज द रीजन। क्लियर? Yes sir. सबसे हल्के रॉक्स कहाँ पे होते हैं पता है? क्रस्ट में। Touch.
लाइट रॉक्स, एंड ये जो रॉक्स है ये प्लेट्स के फॉर्म में, एंड ये जब कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं when the plates are connecting, when the plates of the earth are getting connected to the continents, जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे अफ्रीकन और कौन से यू नो अंटार्कटिक प्लेट्स, आर्टिक प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ये सब डिफरेंट प्लेट्स जो है जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्टेड इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जो लैंड को कनेक्टेड है उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, एंड जो ओशन को कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विच प्लेट्स? ओशनिक प्लेट्स। ओशनिक प्लेट्स। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? कौन से प्लेट्स बहुत पतले रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स के या ओशनिक के? ये कॉन्टिनेंट्स के या ओशनिक के? थिनर कौन से रहते हैं? कॉन्टिनेंट। थिनर रहते हैं ओशंस के, और कॉन्टिनेंट्स के थोड़े हार्ड रहते हैं, थिक रहते हैं। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। एनी डाउट? हाँ। और ये जो प्लेट्स है, नाउ व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट, प्रेशर जब आता है नीचे से, बिकॉज ऑफ मूवमेंट वहां पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है। ये प्लेट्स आपस में एक तो टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। ओके, ये मूवमेंट्स की वजह से व्हाट हैपेंस because of that only they collide with each other, or they brush up with each other. Because of that disturbance happen, and because of that disturbance earthquake happens. और earthquake का दूसरा नाम याद रखना, what is that? Tremors. और ये ट्रिमर्स आने के चांसेस इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? बिकॉज इट इज नॉट आस्किंग अबाउट द वर्ल्ड। अदर इफेक्ट्स ऑफ, याद रखना, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांस, मेट्रोइड हिट होने के, अर्थक्वेक, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या सुनामी आने के चांस रहते हैं। इंडिया में सेस्मिक जोन्स कहाँ है पता है ना आपको? सेंट्रल हिमालयस, देख लो सेंट्रल हिमालयस कहाँ है? सी सेंट्रल हिमालय पार्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाला पार्ट, इंडो-गैंगटिक प्लेन्स, दिस इंडो-गैंगटिक प्लेन्स, ये वाला पार्ट, और एक छोटा सा ये पार्ट, इसको याद भी रखे तो चलता, बस इतना पार्ट याद रखना। कश्मीर, सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ एंड इंडो-गैंगटिक प्लेन्स, ये पूरा इंडो-गैंगटिक प्लेन्स है। एनी डाउट? उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक होती है? जैसे हम लोग बैगन को मेजर करने के लिए केजी में कुछ ना कुछ करते हैं, इसको मेजर करने के लिए रिचर स्केल, a scale which determines the magnitude of strength of earthquake is called as Richter scale, and Richter scale more than 7 can be very dangerous. It can cause very much damage to the building. Okay, so basically if you see, there have been lots of earthquake around the world in last recent 10 years we can see, तो आपको पता चल जाएगा। इसी हम लोगों को जब earthquakes क्या करता है, बेसिकली वेव्स प्रोड्यूस करता है, उस वेव्स के से डिस्टर्बेंस, उस वेव्स को हम लोग सेस्मिक वेव्स बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स। क्लियर? नॉट हैविंग दैट हाइपो एंड एपिक सेंटर ना, या बेसिकली दिस, यू हैविंग द पिक्चर ऑफ दिस एपिसेंटर एंड फोकस इन द बुक? रुतांश है बेटा? Yes, Okay. sir. Yes, sir. एक चीज याद रखना, एपिसेंटर, ये जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस, और ये जो दिख रहे हैं ये वेव्स है, और ये जो अर्थ वाला पार्ट है एपिसेंटर। कभी भी फोकस के पास से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, एपिसेंटर से नहीं होता, ये याद रख लो। एपिसेंटर एक अर्थ का पार्ट है, फोकस वो सेंटर का पार्ट है, एकदम सेंटर में आता है जो हमारे अर्थ के, वो वाला पार्ट है। ओके, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जिसको हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, जहां से बेसिकली जो मेन हम लोग देखा जाए तो मेंटल वाला पार्ट जो रहता है। ठीक है, एपिसेंटर इज अ रीजन ऑन द अर्थ सरफेस, फोकस इनसाइड द अर्थ एंड एपिसेंटर आउटसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के एक लेयर सरफेस पे, याद रखना। और ओरिजिनेट कहां से होता है वो याद रख लो, बस ये दोनों में डिफरेंस देख लो बस, और कुछ नहीं। क्लियर? और सेस्मोग्राफ क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सेस्मिक वेव्स, मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, मैंने बताया था, एक फिक्स पार्ट रहता है, ये फिक्स्ड रहता है, ये हल्का सा एक मेटल रॉड रहता है जिसमें एक पेंडुलम कनेक्टेड है जहाँ पे एक पेन है, और यहाँ पे क्या था, ये वाला पार्ट जो है ये भी फिक्स कनेक्टेड रहता है। तो जो मेटल रॉड है जिसके ऊपर पेन अटैच्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पेपर मीन्स जैसे हम लोग पेपर्स रहते हैं ना, पेपर्स जैसे रोल होते हैं, तो जैसे जैसे वो हिलने लगता है तो ये क्या होता है, पेपर ये जो रहता है पेन, तो ऐसे मार्क करने लगता है, ऐसे मार्क करने लगता है। ऐसे मार्किंग से ये मैप से पता करता है कि वो कितने इंटेंसिटी या कितने पावर का अर्थक्वेक आया है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सेस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट को?
seismograph. And इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सक्यूज हाँ मी सर सर या पर अगर अर्थक्वेक आया तो ये हिल नहीं जाएगा अपनी जगह पे सर? जो बेसिकली एक पार्ट रहता है ना मरियम, ये वाला पार्ट, जो पेंडुलम वाला पार्ट है सिर्फ वो हिलता है, और जो पेपर रोल वाला पार्ट है, बाकी ये जो पार्ट है वो इसको इतना स्टिफ बना के रखते हैं, रॉक से कनेक्टेड रखते हैं कि वो हिलते ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं करते। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिक्स करके रखते हैं, उसको इतना ज्यादा कंक्रीट डाल के रखते हैं, बाकी सब मूवमेंट्स को नेचुरली सीस्मोग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं वो। यस अजरा, ओके सीस्मोग्राफ सर में हॉर्सशू क्यों होता है? क्या बोले बेटा, अपनी आवाज नहीं आई। सीस्मोग्राफ में हॉर्सशू क्यों रहता है? और शू, एक मिनट अंशिका, जस्ट वेट व्हाट यू सेड अजरा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। और शू क्यों रहता है? Take some हेलो या अंशिका, व्हाट यू आर सेइंग? repeat, you are not I audible. was saying that 1 o'clock we have chemistry class also. हाँ 1 o'clock केमिस्ट्री है, तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट ये। ये अभी मीटिंग एंड कर देते ताकि चार्जिंग में हाँ फोन हाँ डाल बस जस्ट अ मिनट। सो जिनको डाउट है दे कैन मैसेज मी पर्सनली। प्रोटेक्शन अगर earthquake करना है तो क्या करना पड़ता है, घर का बिल्डिंग बना रहे नया तो आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स को उनको बेस बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, सो दैट वो अच्छा रहे, एकदम स्ट्रांग रहे। roofs of the building should be kept tight. Timber, mud should be used in the construction building rather than heavy materials. Timber and mud important role play करते हैं क्योंकि ये उतना ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करता है। Okay, the shelf and the cupboard should be fixed to the wall so that they do not fall easily. And जो फोटो फ्रेम्स है, गीजर, क्लॉक्स एंड अदर जो भी हैंगिंग चीजें हैं, उनको ऐसी जगह मत रखो जहाँ से अपने को गिरने पे इट मे कैन अफेक्ट। And buildings should have fire equipments, fighting equipments whenever the earthquake happens because it can cause basically fire. Okay, और हम लोगों को मिलने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, ये देखो the diagram is showing a beautiful मीन्स एक अच्छा से इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कि ये ऐसा जो फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली जो आपका बेस है वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए अर्थक्वेक के समय, ज्यादा अंदर तक उसको डीप करके बनाना पड़ता है। दिस हैपेंस बेसिकली इन जापान वाले फॉलो करते हैं। एंड बेसिकली ये तो आपको सबको पता है कि क्या क्या फॉलो करना है, बाहर खुले मैदान में जाना है, हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है, अगर घर के अंदर हो आप दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी मतलब अर्थक्वेक आ गया तो कोई ये टेबल देख के उसके नीचे छुप जाओ। These are the things you need to look after. Thank you. So basically I've done with the part. Any doubt to anyone now? You can message me personally. Any doubt if anyone is there, you can message me personally.